सब सब हाथ उठाओ जो जॉबलेस है और उनको अच्छा लगता है ऐसा रहना। क्या करना है? जो लोग जॉबलेस है और जिनको अच्छा लगता है ऐसा रहना। मैं हाथ उठाते लेकिन मैं बिजी हूँ। We're talking about education system. Yay! 11, 12 sucks. College sucks. तो childhood ही sucks. क्या ही सीखा है? 9 से लड़को छोड़ के सब करते। Love my life. 9 से में कौन था? था कोई जिसको प्रॉब्लम पता भी नहीं है कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ। एक्चुअली मैं उससे बात करती हूँ, पता है, कभी कभी। उसका एक डॉगी भी है, बहुत क्यूट है। पता है yawn करना is nervous system calming mechanism. अगर स्ट्रेस हो रहा है I don't remember the last time I blinked. do this and चल पूरे एपिसोड में ही ब्लिंक करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 ऐसे करना नहीं था। tighten your body तेरा हाथ खुला है तो बंद रखे तो भी। तो मैं ऐसा सोती हूँ रात को। no joke. No cap dude, no cap. इतने बार आके डर गई हूँ मैं कि जगी है, सोई है, मर गई है। एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या अच्छा लगता है मुझे? थोड़ा अच्छे से बैठती हूँ। What do you like about education? Tell me something that I don't know. Education and I see you adapted my accent. Indian education, forcing children to sit in one place for the entire day while the teacher gives them knowledge, or rather a textbook to learn. Let's talk about what is wrong with education system. Everything. Like carrying heavy books To school wherein we can and back from school. And then again. And then again. And then again. And then again. Till your back hurts and you develop arthritis. Arthritis exist करता है ना फिर से. Genetical thing. Spondylitis. See, if education system was good, I wouldn't have said that. Proof. I've written something. I'll read it out for you. Okay. Sure. Okay. Sure, auntie. Do you guys actually remember when was the last time you were actually happy? Like दिल से खुश? No, मैं बोल रही लोगों को समझना है. समझ तो रहा I है. want people to understand. They do, don't you? Comment if you don't understand my accent. I don't think so that it's true. So, of course, so I was basically asking if you remember when was the last time when you were truly happy. So, of course, it was the time when we didn't have any responsibilities. So, it will take us back into our childhood, doesn't it? Not really. My childhood wasn't that happy. Except, okay, to be honest, I feel education system has ruined our lives. The parents who put you in school either want you to see you cry and feel bad about yourself, or just want to get rid of you for some part of the day. I agree. I mean, who would want to put their kids in the same sad situation that they have been Who in? would want to live with their kids for 24/7? That is my question. So, yeah. Scholar लोग का बात अलग है. It's good for people who love to learn about science and mathematics. Not every kid wants to excel in the same. But अपने parents, उनके parents को copy करने के चक्कर में हमारे लगा रहे हैं. Simple. Your parents don't really like you.
उसका उनका भी Just गलती kidding. नहीं है, just because Just kidding, they are अरे just बोलना बीच में unaware. पूरा रट्टा पड़ेगी क्या रे? हाँ बोल. मैं बोल रही थी कि वो लोग का भी गलती नहीं है, क्योंकि वो लोग को ये सिखाया कि एजुकेशन इज गुड, तो वो लोग अपने बच्चों के लिए बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बट समवेयर इन बिटवीन वो लोग भूल जाते हैं कि यार एजुकेशन सिस्टम इज नॉट दैट वेल डेवलप्ड. हिल रखे क्या मैं Yeah, you're so true. है ना? It looks like I'm dying. We are unaware. I'll tell you how. Try and remember when you were actually happy as kids. When were you actually happy as kids? मैं जब मिट्टी से खेलती थी तब. Right? Right? So maybe when the teacher is not around in the recess break. एक स्टोरी बताओ क्या? PT period. हाँ. एक बार ना मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी ना, उसके साथ मैं हम लोग की सोसाइटी के बाजू में जो गार्डन था उधर खेलने गई थी. ठीक है, और वो मम्मी ने एकदम फ्लेयर वाला एक टॉप दिया था ना मेरे को, वो पहन के गई थी. मैं एकदम हेट करती थी उसको. लड़की को कि टॉप को? हमें टॉप को, लड़की को नहीं. फिर मैं पहन के वो स्लाइड के एकदम ऊपर तक चढ़ के गई, और वो स्लाइड इतना गंदे वे में डिजाइन था ना कि मेरे दोनों अटकी थी तो ऊपर. मतलब ऐसे करके अटकी हुई थी, और उसके बाद एक साइड निकल गया और दूसरा साइड करके पूरा फट गया, और मैं एम्बैरेसमेंट में घर गई थी. Do not send your kids with bad clothing in the playground. मेरे साथ एक बहुत गंदा इंसिडेंट हुआ था. Bestest incident ever. कान फट गया था क्या? इसलिए भी ज्यादा खराब. तो मेरे पास वो टाइम पे कुर्ता पैजामा था जो मैंने चालू किया था पहनना, और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा ना पैजामा फटा हुआ था. तो पीछे से इतना बड़ा हुआ ऐसा. तो मैंने उसको मेरा कुर्ती पैजामा था, नीचे का पैंट था मेरा रेड कलर, ऊपर का टॉप था मेरा ब्लैक कलर. तो मैंने उसको मैच करने के लिए चड्डी पहना था ब्लैक कलर. और लंबा था ऐसे, नीचे नी लेंथ तक था वो कुर्ती. तो मुझे लगा ठीक है, दिख रही नहीं फटा हुआ. और मैं पता था कि वो फटा हुआ है. वाओ. बट मुझे याद नहीं रहता था चीजें, लाइक जैसे मेरे को याद नहीं रहता. तो हम लोग गए खेलने के लिए, चुलबुल शिवांगी मैं एकदम नाम मत बोल. खेलने गए हम लोग फुल एकदम. उधर ऐसे मंकी बार्स है, ठीक है. तो ना कभी नहीं आते ऐसे बच्चे, ठीक है, आउटसाइडर्स कभी आते नहीं, अप्रोच नहीं करते. बट एक दिन उसी दिन आउटसाइडर्स आए हम लोग के पास, और पहली बार ऐसे लड़कों को अप्रोच करते हुए देखे तो मैं फुल एकदम अंदर से पागल हो रही फिर वो लोग करते हैं चैलेंज, ठीक है, गर्ल्स वर्सेस बॉयज. Oh my gosh, girls versus boys. लेकिन इनको नहीं पता था कि मैं उल्टा लटकने में माहिर हूँ. तो किया वो बंदे ने मेरे को चैलेंज कि आने मेरे पास में आता और बोलता है कि तू ये इसके ऊपर उल्टा लटक सकती है क्या? Yo dude, I can. Of course I can. Like हाँ, मैं लटक के स्विंग भी कर सकती हूँ. मेरे पास एक दो स्टंट्स भी थे दिखाने के लिए. I love it. और मैं उसके ऊपर दोनों पैर मैंने अटकाते मैंने जैसे हाथ छोड़ा, सब लोग ब्लैंक हो गए. समझ नहीं आ रहा है. समझ चुलबुलाई पीछे सर मेरा कुर्ती ऊपर गिर दिया. ये क्या हो रहा है? फिर बाद में ओ शिट मेरा पैंट फटा है. और फिर उसके बाद मैं कवर अप करने के लिए नहीं कुछ नहीं, वो डिजाइन है. वो डिजाइन है, मैंने फटा नहीं. वो सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट हो तरह से जो एम्बैरेसिंग मोमेंट वो उस दिन मैंने जो महसूस किया वो मेरे अंदर रह गया है. पता नहीं वो बंदा भी एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो पक्का वो चीज याद कर करके हंस रहा होगा. Talking about embarrassing चीजें, बस एक स्टोरी है. यार मम्मी जब भी मैं ऑफिस से आती थी ना, तो मम्मी मार्केट लेके जाती थी मेरे को, ठीक है. तो एक बार ऐसे लेके गई और मैंने हाथ पकड़ा था मम्मी का. फिर मम्मी सब्जी खरीदने के लिए रुक गई और हाथ छोड़ दिया, और मेरे को रियलाइज नहीं हुआ मैंने किसी और आंटी का हाथ पकड़ ली. और हाथ पकड़
लड़की आगे जा रही है और वो आंटी ना ऐसे कर रही है, ऐसे पकड़ मेरा हाथ ऐसे छुड़ाने की कोशिश कर रही है और मैं वापस आंटी का हाथ ऐसे पकड़ रही हूँ। फिर बाद में लास्ट में ऐसे झटका आंटी ने मेरा हाथ, तो मैं ऐसे ऊपर देखी, छोटे खुद ऊपर देखी तो देखा कि आंटी मम्मी मोटी हो गई सडन। तो मेरी मम्मी है। बचपन में ऐसा होता था ना, स्विच हो जाता था लोग। मैं एक बार तू कहीं तो चली गई 2 मिनट के लिए, मम्मी ने बोला था तेरे पर नजर रखने के लिए और मैं कोई और ही वो लड़की को पकड़ के लेके आ रही हूँ, ड्रैग करके लेके आ रही हूँ मम्मी के पास। आना अरे एक और इंसिडेंट याद है तेरे को? हम लोग फैमिली ट्रिप पे गए थे कन्याकुमारी। तभी ना मम्मी को बोल के गई कि मिनी पे नजर रख, और उधर ना टेम्पल के बाजू में ऐसे मार्केट था बहुत बड़ा सा, तो हम लोग मार्केट में थे और बहुत भीड़ था, तो मम्मी ऐसे रोड क्रॉस करके दूसरे साइड के जिधर पापा लोग खड़े थे और कुछ तो बात कर रहे थे कि फिर देखो बोला था नजर रखने के लिए, और हम लोग के साथ एक दीदी थी जो हम लोग को बस में मिली थी, तो हम लोग उधर थे और मैं एंग्शियस हो गई कि मम्मी क्यों नहीं दिख रही है, और मम्मी मेरे को नहीं बोल के गई कि उस साइड जा रही है, तो मैं रोड के पीछे से भागी और इतने में एक बंदे ने आके मेरे ठोक दिया, ऐसे हम नीचे गिर गए। मैं इधर लगा मेरे को लगा कि काश थोड़ा हाथ फ्रैक्चर होता, थोड़ा ड्रामेटिक सीन क्रिएट करना चाहिए था, नहीं बस इधर एक स्क्रैच आया। और क्या लगा पता है? वैसलीन। कन्याकुमारी में लाइक मतलब मेरे को पता है बेचारे मेरे विशेष इतने नहीं पूरे होते थे कि मेरे को भगवान को प्रे करना पड़ा कि प्लीज मेरा विशेष ग्रांट करो, और उधर ऐसे मम्मी पापा ने बोला था ना, नहीं मम्मी ने आंख बंद करके प्रे करते हैं तो सच होता है। दिल से मांगा, वो एक ऐसा कुछ तो स्टोन का लोटस था, लोटस या पेड़ था कुछ तो, एक आइडल था, बोला यहाँ पे फुल भीड़ है, बोला यहाँ पे एकदम ऐसा दिल से कुछ मांगेगी ना तो पक्का पूरा होगा, ठीक है। और इसके पहले ही, उसके जस्ट थोड़ी देर पहले ही वो कॉटन बड्स लिया था हम लोग ने। वो और ऐसे जो कॉलम पे वो मूर्ति था ना, वो कॉलम पे एक मूर्ति रहता है वहाँ पे जिसके ऊपर ऐसा फेंकने का, और अगर चिपका वो मूर्ति पे तो मतलब वो वाला थोड़ा ऐसा पूरा होगा बस। पता नहीं किधर से लेके आता है यार लोग इसे। तो वो मेरा चिपका था स्टार्टिंग में, तो मुझे लगा यस एक और विश पूरा करना है। तो मैं उधर गई तो हाथ ऐसे एकदम ऐसे ज्वाइन किया मैंने, फुल दिल से मैं प्रे कर रही हूँ और आँख खोलते सब लोग ये कौन सा प्रेयर पूरा हो रहा है? वही मांगी थी ना, फैमिली मर जाए काश मेरा। ये तो नहीं, ये तो रिवर्स हो गया थोड़ा ऐसा ना। उसके बाद बोला कैसे तो भी ढूंढने में पूरे 2 सेकंड के लिए इतना खुश हो गई थी ना मैं, तो गायब हो गई करके। Of course. तेरा चिपका नहीं था ना? नहीं मेरा चिपका था ना, तेरा एकदम बिंदी पे जाके चिपका था। मेरा पैर के वजह से कुछ गिरा। मेरे लाइफ में प्रॉब्लम देखना, जब मैं फोकस करती हूँ तो एम नहीं लगता है बराबर, जब नहीं फोकस करती तब लगता है। हम लोग एजुकेशन सिस्टम पे। हाँ, तो बेसिकली हम लोग यही मैं तो ये बोलने की ये स्टोरीज बिल्कुल रिलेटेड नहीं था, आ गया बीच में। है रिलेटेड है कि जब पढ़ाई नहीं किया सिर्फ तभी मजा है बचपन में। हाँ, तो बेसिकली पीटी पीरियड में या जब टीचर क्लास में नहीं रहती है या ब्रेक है या ऐसे जो अपने लव बर्ड्स है तो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हाथ पकड़ दे, तभी ज़्यादा खुशी मिला है, मेमोरीज बनाया उन्होंने, राइट? Can't relate. तो मैं मतलब I feel holding hands was like a cheap organic drug to escape out of the sad reality of education system as kids. So see, मैं तो non रिसेस तक वेट करती थी ताकि फ्रेंड्स का टिफिन खा सकूं। हाँ, और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज वर ऑलवेज फन, जैसे पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, बट लेकिन वो सब कब होता था? हफ्ते में एक बार। जिंक्स। We are on sync. So पीटी पीरियड हो गया, म्यूजिक क्राफ्ट्स हो गया, बस लूअर करने के लिए था कि तुम लोग रोज आओ स्कूल। Sure.
That worked out really well. आर्ट और क्राफ्ट्स का क्लास तो उसके ऊपर क्या लिखते थे वो लोग टाइम टेबल पे, आर्ट/क्राफ्ट। हाँ, एक मतलब एक भी नहीं दे सकते दोनों को चिपकाना है। उसमें भी सब्स्टिट्यूट आते थे। और मैं उसके बाद की आर्किटेक्चर जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट इम्पोर्टेंट था। So अभी इन सब में लेट्स इमेजिन अ लाइफ ऑफ एन अंडर प्रिविलेज्ड न्यूरोडाइवर्जेंट किड, ठीक है? Define neurodivergent. It can be ADHD, autism, इधर definition डालेंगे। dyslexia. इधर मेरे forehead पे डालो क्योंकि किसी ने तो comment किया था कि मेरा forehead बहुत बड़ा है। इधर fit हो जाएगा पूरी definition। Yeah. So for sure this is what hell looks like for those kids. और ये तुझे क्या लगता है, मतलब ये standardization ही हो गया ना? Like not even they're just doing it because it's business and they don't really care कि वो education system सारे लोगों को fit in हो रहा है। हाँ, because not अगर education सारे बच्चों के लिए होता ना तो हर बच्चे को एक अलग टीचर असाइन होती, because not every kid is the same. क्लास में 2 बच्चे भी सेम नहीं होते हैं, तो सोच रहे हो उस केस में जिधर टीचर 50 स्टूडेंट्स पर अटेंशन देने की कोशिश कर रही है, उसमें एक बच्चा है जिसको ADHD और कंटिन्यूसली वो स्क्विरल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है पेट के बाहर, तो यू आर नॉट इवन, क्या बोलते हैं, व्हाट इज द वर्ड आई एम सर्चिंग फॉर, अटेंशन ही नहीं दे पा रहे ना टीचर्स। एंड मे बी टीचर 1-2 बार देख के वो बच्चे को डांटेगी कि क्यों देख रहा है बाहर या ऐसा कुछ टॉन्ट करेगी, बट शी इज नॉट रियली हेल्पिंग हिम, शी इज मतलब एकदम अनअवेयर है टीचर्स मेंटल इलनेस के बारे में। सो दैट इज रियली सैड, एंड स्पेशली इंडियन स्कूल्स में काउंसलिंग वगैरह इज नॉट अ रियल थिंग अनलेस एंड अंटिल यू आर रियली प्रिविलेज्ड एंड यू आर इन अ प्राइवेट स्कूल, देयर आर नो काउंसलर्स फॉर यू, स्पेशली फॉर पुअर किड्स। तो वो लोग घर पे भी थोड़े मोस्टली किड्स ऐसा होता है कि चुप चुप रहते हैं, स्कूल में आएंगे तो भी नो वन इज लेटिंग देम टू टॉक, क्योंकि पूरा बैक टू बैक सिर्फ पढ़ो 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 ऐसा टाइम टेबल है। तो वेयर डू द किड्स गेट टू लाइक स्पेंड टाइम एंड टॉक टू ईच अदर एंड वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर कर पाए? लाइक इफ यू हैव रियली गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स तो मे बी थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे वो लोग, बट एट द एंड ऑफ द डे किड्स डोंट अंडरस्टैंड अदर किड्स इधर, बिकॉज हम लोग बच्चों से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि दे कुड नो अबाउट लाइक मेंटल डिसेबिलिटीज या मेंटल हेल्थ या यू नो। That is so true. आगे पढ़ना। So मैंने लिखा है कि मुझे तो सोने का एक्टिंग करना पड़ता था खिड़की के बाहर देखने के लिए। तो हम लोग को सोने देते थे क्लास में? नहीं, but I would sacrifice that, मतलब वो डांट खा सकती थी, but I just couldn't focus। तो एक बार ऐसा भी हुआ है कि मतलब वो सोशल स्टडीज है एंड लाइक मैं बैठी हूँ फर्स्ट 3 बेंचेस में कहीं तो, और मैं फुल फोकस अटेंशन दे रही हूँ, बट मेरे कुछ नहीं आ रहा दिमाग में, अटेंशन दे ही नहीं पा रही, और मैं रोई भी नहीं, पता है PTA में कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है वगैरह, बट वो टीचर ने बोला कि अच्छा समझ नहीं रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम थोड़ा और फोकस करना, कुछ समझ रहा है तो मुझे बताना। तो आई जस्ट प्रिटेंडेड उसके बाद से कि मेरे को समझा है, लेकिन मेरे को कभी समझा ही नहीं था। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे साथ सेम चीज संस्कृत क्लासेस में होता था। एवरी सब्जेक्ट आई यूज्ड टू गेट इट ऑन द फर्स्ट टाइम, लाइक मैथ्स अमेजिंग, साइंस ओके अमेजिंग, बट संस्कृत जब आता था ना, मैं जितना भी सर फोड़ लूँ मेरे को नहीं समझता था वो कॉन्सेप्ट, बट अभी देखती हूँ ना तो इतना ईजी है, एंड आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो रट्टा मार पाता है। तो तू मेरे को एक चीज 100 बार रिपीटेडली लिखने बोलेगी ना तो मेरे को नहीं घुसेगा दिमाग में, बट एट द सेम टाइम अगर तू मेरे को उसका रीजनिंग बताएगी तो मेरे दिमाग में 1 सेकंड में घुस जाएगा। और मेरा ऐसा है कि मुझे पिक्चर्स में समझाते तो समझ, हाँ ड्राइंग्स में विजुअलाइज करवाना मेरे को, इसलिए आज का एजुकेशन सिस्टम इज मच बेटर देन व्हाट वी, मतलब हम लोग इतने बुढ़े नहीं है, बट वी डिडंट हैव प्रोजेक्टर्स इन आवर स्कूल, याद है? हाँ, बट स्टिल लाइक ज्यादा डिफरेंस चेंज नहीं हुआ है, लाइक वी आर स्टिल रीडिंग व्हाट अभी हेल्प है इन अ वे, अभी थोड़ा सा एक्सटर्नल हेल्प है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन है ना, बहुत सारे फ्री कोर्सेस आए, जैसे बोल सकते हैं जैसे मेरिट नेशन वगैरह था ना, जब मैं लाइक अराउंड
8th स्टैंडर्ड में आई थी तब मैंने वो मेरिट नेशन डिस्कवर किया था और उसमें बहुत क्लियरली विजुअली वो लोग पिक्चर्स बना के एनिमेशंस बना के एक्सप्लेन करते थे. तो वो वाले चीज़ को थोड़ा मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लेके आना चाहिए. वो भी ठीक है, बट एट द सेम टाइम पूरा सिलेबस मतलब लाइक जो डेप्थ में हम लोग मैथ साइंस ये सब पढ़ते हैं वही इंटेंसिटी के साथ हम लोग को आर्ट्स वगैरह भी कराना चाहिए ना. ट्रू क्योंकि हाफ ऑफ द लोग क्रिएटिव फील्ड्स में भी जाते हैं. 12 years ऑफ एजुकेशन चाहिए क्या उसके लिए? लाइक लाइफ का सबसे वैल्यूएबल टाइम उधर जा रहा है. और मेरे को नहीं लगता आजकल के बच्चे जो है वो लोग इतने स्मार्ट है. दे डोंट रियली रिक्वायर एजुकेशन एज सच. वो हम लोग ट्यूशन ले रहे थे वो बच्चे को कितना स्मार्ट था वो. लेकिन मेरे को पढ़ा रहा था वो. तो मेरे को नहीं लगता उनको चाहिए उनको, क्योंकि उनको पता है दे वो लोग टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुए हैं तो उनको पता है उनको क्या मैं चाहिए. तो बिलीव करती हूँ कि सेल्फ पेस्ड एकेडमिक्स होना चाहिए. जैसे इधर इतना कॉमन नहीं है गेस, बट होम स्कूलिंग जो होता है ना उसमें लाइक यू गेट अ करिकुलम और तू पढ़े ही हो एंड तू अपने मेजर्स चूज कर सकती है. तो जो आर्ट में इंटरेस्टेड है बच्चा वो आर्ट ज्यादा देर ले सकता है. बट होम स्कूलिंग ऑब्वियसली फीजिबल नहीं है सबके लिए. तो वही तो इंस्टीट्यूट्स आर नॉट अबाउट हेल्पिंग अ किड ग्रो. हाँ कुछ लोग के लिए हेल्प होता है जो लोग का इंटरेस्ट है वहाँ पे, सबके लिए नहीं होता. मुझे सुपर सोशल एंजाइटी होता था जब रीड आउट करने बोलते थे. जस्ट इमेजिन एक डिसलेक्सिक बच्चे को अगर रीड आउट करने बोलते होंगे क्लास के सामने. बहुत तारे ज़मीन पे उसमें डिसलेक्सिक बच्चे के बारे में है. थोड़ा बहुत शायद, बट उसमें भी वैसा एक सीन है ना जो वो पढ़ने बोलते हैं क्लास के सामने. हाँ क्या? I don't know. एक्चुअली डिसलेक्सिया बहुत कॉमन होता है. जितना लोग सोचते हैं उतना अनकॉमन नहीं है. कॉमन है. लाइक आई हैव मेरे अगर 3-4 फ्रेंड्स है तो 2 लोग तो मेरे सर्कल में है जिनको मैं जानती हूँ जिनको जो सफर करते हैं प्रॉब्लम से. और मैं ज़्यादा फ्रेंड्स रखती नहीं हूँ. तो एक और चीज़ मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है यूनिफॉर्म्स. ठीक है, यूनिफॉर्म्स आर डिसीविंग. इट मेक्स एवरीवन लुक एज इफ they have equal privileges back at home and making kids unaware of the reality. What if someone is being beaten up, someone being molested? How would you know if there is actually something off with the kid? Where is empathy taught in schools? हम लोग नहीं मतलब यूनिफॉर्म एज अ कॉन्सेप्ट इज गुड. क्योंकि देख हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोग को पता नहीं था कि कौन अमीर है कौन गरीब है. तो ही ट्रीटेड एवरीवन इक्वली क्योंकि सब एक ही यूनिफॉर्म पहने थे. वही तो मैं उसका दूसरा इफेक्ट बता रही थी कि इवन तो पता नहीं था कि कौन अमीर है कौन गरीब है. बट दैट फॉर अस we didn't actually understand the concept of अमीर और गरीब. कि एक बच्चा के पास उतना पैसा नहीं है पिकनिक में स्पेंड करने के लिए और दूसरे बच्चे के पास है. तो ऑफ कोर्स जिसके पास नहीं है उसको कॉर्नर करते होंगे ना. या जिनके पास है पैसा और जिनके मॉम डैड हाँ प्लेस्टेशन ये वो सब खरीद के दे रहे सब उसके ही घर पे हैंग आउट करेंगे. What I want to say is like religion अगर तुम do not favor one religion over other, especially in a school. Instead make it a place where children come together and learn about all religions instead of one particular one. मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ क्योंकि जब हम लोग को दिवाली वेकेशंस होता था तो we used to have a huge party. Huge मतलब टिंजी party, but the entire school would be decorated and blah blah blah. But अगर you are celebrating a Hindu festival, तो you should celebrate a Christian festival, an Islamic festival. Islamic होता है Muslim होता है. Islamic festival और Muslim festival. I'm so sorry if it's wrong, but वो festival, then Jain लोगों का festival, Sikhs का festival. Why not celebrate all? Like the major दो जो होता था वो था Christmas party and we used to have Diwali party. That's all. And even though we lived in such a diverse area, हाँ इतना diverse school में थे हम लोग. So for me, for her uniforms were not really deceiving, and for me uniforms are deceiving. It makes everyone look as if they have equal privileges back at home.
makes kid unaware of the reality. What if someone is being beaten up, someone has been molested? How would you know if there is actually something off with the kid? No, so empathy is not empathy is not really taught. Like while you teach obedience and discipline, okay, and do you understand that even if a kid is able to see what actually wrong, what's happening is actually wrong, but he has to obey to fit in with the peers? If we all are considered equal, then why can't we really see what is evil? Also, can we say that beating children and abusing and even verbally abusing them is not okay at all. सेल्फ एस्टीम बहुत लो कर देता है वो चीज. And even like blackmailing children, how is that okay? And that is not the worst of it. Like kids literally get beaten to death by teachers. तो कुछ अभी तो वो सब नहीं है. कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग को नहीं पता है. वो क्या पता कि अभी भी होता होगा. ट्यूशन्स में हालत खराब होता था मेरा. एंड द थॉट अभी यूएसए में काफ़ी टाइम पहले ऐसा था कि टीचर्स वुड बी अलाउड टू कैरी गन टू देयर क्लास, क्योंकि वहाँ पे मास शूटिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा होता है. बट तुम्हें ये भी समझना है कि नॉट ऑल टीचर आर मेंटली स्टेबल. अगर एक टीचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, उसने गन निकाल के बच्चे को शूट कर दिया, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? द स्कूल इज़ नॉट गोना टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्कूल को ना मेटल डिटेक्टर रखना चाहिए. रखा है ना, अमेरिकन इंस्टीट्यूट में है. फिर भी स्नीकिंग कर लेते हैं. हम लोग का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाता व्हेन अ चाइल्ड इज नॉट स्टेबल. So far from school, we are taught to fly limited, behave, making us sheeps. तेरा एक आँख बंद एक आँख खुला वैसे ही लग रहा है. So basically, we are taught to fly limited. मैं पढ़ूँ क्या? तेरे को पढ़ने नहीं आता? But किधर ले गया? we are taught to नहीं, तू fly. ही पढ़, तूने लिखा है. So far from school, we are taught to fly limited. We are taught to behave, which makes us sheeps, giving ego boosts to those kids who turn into the biggest misogynist of all times. मेरे को तो ये बहुत hurt होता है. So we need to understand the importance of empathy, what rights we have as humans, how and why is it important to grow together and not crush someone along the way. Okay. People don't care about the dying street dogs. People don't care about the global warming. We don't care about the tons of non-decomposable waste. So when and how are kids actually going to learn about it? Kids say they learn more from TikTok than they actually learn from school. If the answer is the internet, then are schools even able to keep up with the internet? Is education system really catering to unprivileged kids, neurodivergent kids, or is it just business? The part where you said that we learn more from TikTok than from schools is so true. It's so true. Because like taxes सिखा रहे हैं करना TikTok पे यार. हाँ. Oh wow. Exactly. स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम रील्स में. तो ऑब्वियसली एजुकेशन सिस्टम से तो बेटर ही होगा फिर. एंड अगर तुम कोई चीज़ को गूगल कर सकते हो तो इज इट नेसेसरी टू एक्चुअली लर्न दोस थिंग्स? इज इट? No, actually it should be taught ideally, but ऐसा सीन है कि वो स्कूल क्या सीखना चाहिए? सिखाना चाहिए टैक्सेस करना. हाँ. ये सब कुछ understandable language. Finances, I think at least a bit teensy part of it should be taught in schools, like how to handle your money. अगर word problems में maths में सिखा रहे तो भी ठीक है ना, कि like you had 10 rupees, now you're in debt. Schools doesn't teach how to overcome poverty. Like adjust होके ही रहना पड़ता है. Just imagine 12 साल अगर स्कूल ने सिर्फ अमीर कैसे बनते हैं सिखाया है, तो बच्चे को जो भी पढ़ना है वो खुद से कमा के पढ़ लिया रहेगा ना. इवन छोटे से छोटे चीज
लाइक इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड किड को पैसे सेव कैसे करते हैं उसका कॉन्सेप्ट समझाए तो एक न्यू टेक्निक ऑफ टीचिंग अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है. न्यू नहीं है एक्चुअली, काफ़ी पुराना है, बट आजकल थोड़ा स्पॉटलाइट मार रहा है. इट्स कॉल्ड हार्कनेस एंड उसमें डिस्कशन बेस्ड लर्निंग होता है. बेसिकली यू चूज व्हाट यू वांट टू स्टडी दैट डे. टीचर्स हम लोग को बोलेंगे कि इतने पेजेस पढ़ने का ट्राई करो, यू गो एंड रीड अबाउट दैट, और नेक्स्ट डे आके यू गिव प्रेजेंटेशंस अबाउट व्हाट यू लर्न दैट डे. So that is kind of cool because you are मतलब somehow you are implementing internet. अगर तुम बच्चे को कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो he's gonna look at the internet. तो that is a cool way of learning new things because जो बच्चे ने इंटरनेट में जाके रिसर्च नहीं किया उसको भी कुछ नया सीखने मिल रहा है. So like 10 बच्चे 10 अलग टॉपिक्स पे बात करके 10 अलग presentations दे रहे हैं, तो that is so cool. You get to learn more than what you learn in a normal school. I really like that concept. तो और क्रिएटिव अप्रोचेस होने चाहिए टीचिंग को लेके ऐसा लगता है. इट्स नॉट स्टूडेंट्स आर बैड, लाइक द टीचिंग क्वालिटी इज बैड. मेरे को नहीं लगता एनी स्टूडेंट कैन बी एक्चुअली बैड. हु कैन बी एक्चुअली बैड एट स्टडीज? बच्चे जब आते हैं स्कूल में तो क्लीन स्लेट जैसा होता है. Blank canvas. Yeah, blank canvas, clean slate, blank canvas. And how can he be bad at studying? That does not imply that you are bad at teaching. Exactly. Funny होता है. Maybe teachers को भी like हाँ, creativity generation wise नहीं मतलब trend wise जैसे भी जा रहा है या इम्पोर्टेंस वाइज उनको भी वर्कशॉप्स सेमिनार्स वगैरह देना चाहिए कि उनका नॉलेज भी एक्सपैंड हो. बिकॉज जो लोकली अवेलेबल टीचर्स हैं वो लोग का भी कुछ गारंटी नहीं दे सकते ना. दे आर परफेक्ट टू टीच देम. वो लोग भी अपना एक पर्सपेक्टिव लेके आके ही पढ़ा रहे हैं. Even if it's not, if conservative है, liberal है, वो टीचर है, वो फर्क नहीं पड़ता है. मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हम लोग वर्ल्ड में देखते हैं ना वो स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं. लाइक वी सी मिसोजिनी, वी सी पेट्रियार्की, वी सी चाइल्डहुड मैरिजेस, ऑल एवरीथिंग दैट वी फेस्ड इन आवर डे टू डे लाइफ बेसिकली वो सब स्कूल में नहीं कवर होता है. एंड where are you enhancing a kid's creativity? मतलब the school has not educated a kid to be a good painter. तो वही मैं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं जानती नहीं हूँ जो लोग पेंटिंग अच्छा करते हैं बट वो स्कूल ने नहीं किया है उनके लिए. How do you figure out what is your passion if you are not taught that subject in school? Maybe किसी को pottery पसंद है. But no, you can't do pottery in school because resources नहीं है. बाहर से सीखो. 1 लाख जो पे कर रहे हो स्कूल में उतना ही नहीं, स्कूल में भी सीखो, वही पढ़ो या टाइम वेस्ट करो, मोस्टली टाइम वेस्ट. उसके बाद ट्यूशन भी जाओ एंड फिर तुम्हें फुल मार्क्स भी मिलना चाहिए कॉलेज. इतना घर पे भी आके पढ़ना है ना. स्ट्रेस प्रेशर डाल रहे हैं बच्चे पे. फिर ट्यूशन टीचर ने होमवर्क दिया रहेगा वो करो, फिर बाद में स्कूल से होमवर्क मिला वो करो, फिर नया शीट्स बनाना है, क्या बोलते हैं उसको चार्ट पेपर बना के लेके आओ 3 states of matter पे. क्यों घर पे क्यों बनाया, उधर ही बनाएंगे ना. बनाएंगे. बिलीव मी आज के बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है. बहुत ज्यादा स्ट्रेस. ऑलरेडी उनके ऊपर इतना प्रेशर है एंड दे हैव टू परफॉर्म वेल. एंड ऊपर से वो आज का कल्चर, व्हाट इज दैट कॉल्ड, ग्राइंड कल्चर काइंड ऑफ, कि you have to do something more than the other person. You have to run a small business, you have to be good in maths, science, all the subjects, and you have to be good in sports. और फिर एक पियानो या गिटार आना चाहिए तुम्हें, सिंगिंग में अच्छा होना चाहिए, डांस में अच्छा. सांस कब लेगा बच्चा? मेरे को सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए सांस नहीं लेने मिला. तो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दिन में बच्चा ये सारे करेगा. एंड जब भी बच्चे का मार्क्स कम होता है तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट गोस? स्पोर्ट्स. खेलने नहीं जाएगा अभी से, डांस नहीं करेगा अभी से, म्यूजिक से नहीं, टीवी बंद, फोन पे पूरा दिन बैठे रहते हैं. इरिटेट हो रहा है मेरे को इसके बारे में बात करते हैं.
ठीक है, आई गेस एक बेसिक ग्लिम्स तो दे दिया हम लोग ने कि क्या चल रहा है दिमाग में. ऑफ कोर्स बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर नहीं किए हैं, बहुत बहुत सारे, बट And parents, your kids are not safe at school because there are predators at schools too. अरे ऐसा नहीं है, तू तो अभी उनको स्कूल ही मत भेज. ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बोल रही हूँ अगर पेरेंट्स को लगता है कि स्कूल जा रहा है बच्चा तो बहुत सेफ है करके, तो इट इज़ नॉट दैट वे. बिकॉज जब हम लोग स्कूल में थे तभी एक इंसिडेंट था. आई डोंट नो कितने लोग अवेयर है इसके बारे में. मैं एक दिन ऐसी लॉबी में खड़ी थी, एक छोटी सी बच्ची थी और उसकी मॉम थी वहाँ पे, एंड शी वाज लाइक गोइंग बैक एंड फोर्थ विद द रिसेप्शनिस्ट. एंड उस कॉन्वर्जेशन में आई फिगर्ड आउट कि दैट किड had been mistreated. Basically क्या हुआ था कि the driver had, मतलब उसका last stop था, and the driver had tried to lift her skirt up and kiss her on the belly, which is I don't know. That is और वो छोटी बच्ची थी, हाँ, सीनियर केजी की भी नहीं होगी, बहुत छोटी. अगर किसी आउटसाइडर ने नहीं किया रहेगा तो स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा भी नहीं ना बच्चों को ठीक करने का. अगर डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, आई होप स्कूल थोड़ा अवेयर हो जाए सब चीज़ों को. एटलीस्ट एक काउंसलर आर्ट को एटलीस्ट आर्ट थेरेपी में तो कन्वर्ट कर ही देना चाहिए उनको. ये तो सिखाना चाहिए ना कि इमोशंस प्रोसेस कैसे करते हैं. मुझे एक स्टोरी याद है. एक ट्रैवलर बंदा एक ग्रुप ऑफ मॉन्क किड्स के खेलते हुए उनको नोटिस करता है. तो उनसे वो पूछता है कि क्यूरियस होकर कि व्हाट डू यू लर्न इन स्कूल, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू लर्न इन स्कूल. तो वो लोग बोलते हैं द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न इन स्कूल इज हाउ टू ब्रीथ. ओह, मॉन्क स्कूल में. Sounds interesting. और ब्रेथ को कैसे कंट्रोल करते हैं, ब्रेथ पे कैसे वर्क करते हैं वो सिखाते हैं. So that breath actually helps to process a lot of emotions. कोई भी स्ट्रेसफुल चीज़ या हो रहा है तो उसको कामली कैसे डील करना है वो सब चीज़ें सिखाना चाहिए. ये सारा चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहता है ना. मेडिटेशन टेक्निक्स, any kind of meditation. Like recently I've been exploring art therapy and it is very therapeutic. Art therapy is very therapeutic. हाँ, What an original statement. तो I'm impressed. अच्छा है. टॉकिंग थेरेपी हो गया, तो भी टाइप ऑफ थेरेपी, बट लाइक पहले से ही होना चाहिए. लाइक फिर बाद में थेरेपिस्ट को पे करने का एक जरूरत नहीं चीज पड़ता बोलती हूँ है. मैं. Why I'm saying कि having a counselor is so important is because वो लोग counselors first of all mental health में trained रहते हैं. So you get to know before a kid does something really bad to themselves or harms others. Secondly, अगर kids counselor से comfortable होके बात करते हैं in whatever confidentiality and whatever, तो एटलीस्ट दे गेट टू नो कि वो बच्चे के घर पे सब सिचुएशन अच्छा है कि नहीं, हाउ आर दे गोइंग थ्रू, व्हाट डिड समथिंग हैपन टू देम. क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा आके क्लास में सो रहा है, यू डोंट नो द रीजन, द टीचर सेंड्स हिम टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस. इंस्टेड डूइंग दैट, अगर वो टीचर काउंसलर के पास भेजते हैं तो मे बी द काउंसलर के फाइंड आउट ओके उसके घर पे कोई मर गया था एंड ही कुड नॉट स्लीप एट हिज हाउस क्योंकि वेक था पूरे रात. तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज इम्पॉर्टेंट. Maybe we should end with this. We'll talk more on this topic next time. Probably not next time, तो कभी ना कभी. As we learn, will help spread the awareness. So see you guys until next time. कोई theme song? Na 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 na. Gotta blame it on the juice. Gotta blame it on the goose, baby. Na 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 na. Bye. This girl is on fire.
This girl is on fire. Na 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 na. Na na na. Highway. बड़े बोर हो रहा है dude, बड़े बोर हो रहा है. Tell me what, tell me what, tell me what. Better? हाँ ना बम्बा. Something in the way you move. वो बच्चे चिल्लाने का आवाज देंगे. ये डाला YouTube पे. कोट में दिखा रही है. ये मेरा iPad किधर है? Hello, hi. So, छोटे से poem तो नहीं. So, like intellectual भी like at least वो education तो देना चाहिए. ओपन करके आते हैं. Tell me what, tell me what, tell me what, tell me what you want. Where you move. Round and around and around we go.